کورونا کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. خاص طور پر کراچی میں کل ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران بھی کیا, پریشان بھی کیا اور مغموم بھی کر دیا ہے. یہ میرا اشارہ اس واقعے کی طرف کہ جب ایک ڈاکٹر, کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر, ظاہر ہے اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ٹریٹمنٹ بھی اچھا ڈیزرو کرتا ہے اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو ظاہر اویئرنیس بھی زیادہ ہے, اس کے سورسز بھی زیادہ ہیں. لیکن کل یہ ہوا کہ یہ ہم کسی اندرون سندھ کے کسی گاؤں میں, پنجاب کے دور دراز علاقے میں, بلوچستان کی کسی آبادی کی بات نہیں کر رہے, کراچی کی بات کر رہے ہیں اور ایک ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جس کو کورونا کی مثبت ہونے کی تشخیص ہوئی. اور قصہ مختصر یہ کہ گھنٹوں تک اس کے گھر والے, ان ڈاکٹر کے گھر والے, یہ اگر بات کہیں اور کی ہوتی شاید لوگ جھٹلا دیتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, میڈیا نے ذرا کہانی کو بڑا چڑھا کے بتا دیا ہے. گھنٹوں تک ایک ڈاکٹر کے گھر والے ایمبولنس میں لے کر ایک ڈاکٹر کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال دھکے کھاتے رہتے ہیں. کوئی اسپتال کہتا ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, کوئی اسپتال کہتا ہے ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. اس ڈاکٹر کا جو وائس نوٹ ہے یا جو آخری جو ٹیلی فونک گفتگو ہے, اگر آپ وہ سنیں تو آپ کا دل کٹ کے رہ جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے آپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ڈاکٹر فرقان, ان کی آخری جو گفتگو جو تھی انتہائی دردناک اور کربناک, وہ دیکھیے. یار انڈس میں ہے بھی تو کوئی نہیں نا, مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ دور ہے. ایمبولینس والے کو اس جگہ پہلے آپ انڈس میں کنفرم کریں کہ جگہ ہے, ورنہ ہم نہیں لے جائیں گے آپ کو. تو اس سے پوچھتے بھائی اور کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو, جگہیں تو بنائی ہے نا انہوں نے. ہاں پتا نہیں یار, بڑے ماں کرتے ہیں, جہاں بھی ہیں سب بھری ہوئی ہیں. اچھا خیر ہے, میں تو ٹرائی کرتا ہوں. جی ٹرائی کریں, دو لیٹ لی دو. اور پھر ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فرقان کی جو وائف ہیں, جو بیوہ ہیں, انہوں نے کل رات کی ساری رودات بتائی کہ کس انداز سے وہ در بدر پھرتے رہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں تھا, یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو واپس گھر آئے جہاں انہوں نے جان دے دی. ڈاکٹر فرقان کی اہلیہ نے یہ کہا. کیا بتاتے رہے آپ کو کہ وینٹیلیٹرز ہے ہی نہیں؟ نہیں, وینٹیلیٹر نہیں, ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے, بھرا ہوا ہے, ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. ہم جہاں گئے سب پہ واپس, ہم ہر جگہ ہم آدھا 1.5 گھنٹہ یہاں کھڑے رہے, کسی نے نہیں لیا. پھر ہم واپس گھر آئے, وہاں انہوں نے دم توڑ دیا. امن والا گھما کے لے آیا, آخر میں وہ بہت غصہ کر رہا تھا. انسانیت نہیں ہے. بس میں نے وہ امن والے کو کہا, میں نے کہا بھائی میرے ساتھ اٹھا لو, میں عورت میں کیسے اٹھاؤں گی. نے کہا نہیں, ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم مجھے مار ڈالیں گے, مجھے گھر لے چلو, لیکن بیچارے ختم ہو گئے. بہت بے بسی کے عالم میں چلے گئے. میں بہت بے بس تھی. ایمبولینس میں باہر ہی نہیں, میں اتری تھی ٹائمسی کے پاس تو مجھے اندر کر دیا, ان کو تو نکالا ہی نہیں. تو ذرا ہم آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ مطلب بیان بازیوں سے اگر فرصت ہو جائے گورنمنٹس کو تو ذرا اس پر کچھ نظر کرم ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ابھی تو مطلب معاملہ اللہ نہ کرے لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید مزید خراب ہوگا اگر ابھی سے صورتحال ہے. اور سندھ میں یہ صورتحال ہے, سندھ گورنمنٹ تو بڑا پرویکٹیو ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور وفاق پہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے, وفاق سندھ پہ تنقید کر رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے, ذرا گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں. صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, ملک احمد خان صاحب پی ایم ایل این کے رہنما, اور ناز بلوچ صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناز بلوچ صاحب سب سے پہلے اگر ہم یہیں سے آغاز کریں, سندھ گورنمنٹ کے سارے نیریٹو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم تو اپنی بہترین ایفرٹس کر رہے ہیں اور وفاق نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ کراچی میں کل جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی جواز, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, سب سے پہلے تو انتہائی افسوس ہے اس واقعے کا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ایک ایسا ایک وقت ہے, ایک ایسی مشکل گھڑی ہے جس کے اندر ڈے 1 سے سندھ حکومت, وفاقی حکومت کی طرف سے ایک سپورٹ جو ہے اس کی طلبگار رہی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی کلیمٹی ہے, یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک, امریکہ ہو, اٹلی ہو, اسپین ہو, وہ ممالک جہاں پہ ہیلتھ کے ہائی سٹینڈرڈز ہیں اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں, وہاں پہ لوگوں کی جانیں جو ہے بچانا بہت مشکل ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں
जा चुकी हैं अमेरिका के अंदर ही, और लाखों की तादाद में लोग जो है वो इसका शिकार होके दुनिया से कूच कर गए। लेकिन अगर एक डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिलता और वो मर जाता है, वो इंतकाल कर जाता है, शहीद हो जाता है, तो इसमें विफाक के अदम ताउन का क्या, इसमें विफाक का क्या कसूर है? मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैंने असल में जब पार्लियामेंट का गुज़िश्ता हमारा आखिरी लास्ट सेशन था उसमें मैंने पार्लियामेंट्री हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद से खुद पर्सनली उनसे मैंने बात की थी और उनकी तवज्जो इस बात पे दिलाई थी कि पाकिस्तान भर में कराची से लेके KPK तक, गिलगित बल्तिस्तान तक वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और इस वेंटिलेटर्स की कमी को फौरी तौर पे पूरा किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट करता है और हमारे पास ना तो वेंटिलेटर्स की इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और ना ही हमारे पास उस तरह से टेक्नीशियंस मौजूद है जो वेंटिलेटर्स को ऑपरेट कर सके। तो ये इसको प्रायोरिटी के ऊपर इमरजेंसी बेसिस पे वेंटिलेटर्स के मसले को देखा जाए, जिसपे शी अग्री टू मी, और उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम से बात भी करेंगी और फौरी तौर पे वेंटिलेटर्स अरेंज करवाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक वेंटिलेटर्स अरेंज नहीं हुए। आई डोंट वांट टू प्ले पॉलिटिक्स ओवर हियर। इससे ज्यादा अफसोस की बात ये नहीं है कि आपकी 10 साल से हुकूमत है सूबे में और उसमें 5 साल वो है जब वफाक में भी हुकूमत थी और सूबे में भी हुकूमत थी, तब सेहत का निजाम इतना अच्छा नहीं बनाया। अभी 10 दिनों में विफाक ने वेंटिलेटर नहीं दिया, तो ये अफसोस की बात है। वसीम, ज्यादा अफसोस की बात क्या है इन दो में से? नहीं वसीम, देखें सूबे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप वो देखते हैं तो बिल्कुल सूबे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने तमाम अस्पतालों की हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आज भी अगर आप देखें तो तमाम सूबों से, KPK से या पंजाब से अगर आप मवाजना करें तो इस वक्त सिंध में हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत कदर बेहतर है। अगर आप सूरत हाल KPK में देख लें, आप पंजाब में देख लें, आज मेयो हॉस्पिटल्स की जो तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पे जिस तरह चूहे दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर, उसके अलावा अब गायनी का पूरा वार्ड जो है उसको बंद कर दिया गया 2 हफ्तों के लिए। तो ये सूरत हाल पेशावर के अस्पताल में चूहे दौड़ रहे हैं, उसको आप कोट कर रही हैं। कराची की सड़कों पर एक बूढ़े डॉक्टर ने तड़प के जान दे दी है। उस सवाल के जवाब में इस वाकये के क्या क्या है? अगर ये वाकया पेशावर में हुआ था तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखो ये हो रहा है पेशावर की सड़कों पर। जी, पेशावर में पिछले हफ्ते अफसोसनाक वाकया डॉक्टर जावेद का हुआ था, वो भी बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत दिलखराश वाकया था और इक्वली वो इतना ही दुख का वाकया था जितना ये कल वाला वाकया। इस अंदाज से इस तरह की एक जान कीमती है, लेकिन इस अंदाज से वो मामला नहीं हुआ था। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस वाकये की जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब क्या है इस पे? देखिए, देयर इज नो जस्टिफिकेशन वसीम, मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन ना दूंगी, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, क्योंकि एक एक जान की कीमत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना कर सकें अपने लोगों की जान बचाएं और उनको सहूलत, सेहत की जो है बेस्ट सहूलत हम फराहम करें। तो मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि एक इंसान की जान गई है और वो मेरे लिए इतना ही दुख का मामला है जितना आपके लिए, और उनकी, मैं समझती हूँ उनकी फैमिली के साथ इस वक्त हम दुख में उनके शरीक हैं और इस बात की कोई जस्टिफिकेशन ना मैं दे सकती हूँ ना कोई भी आपको दे। तो ना साहब ये भी जरूरी नहीं है, मतलब कि यानी ये ठीक है विफाक का जो इस सारे मामले में माहौल है, मेरे खुद में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैंने तो बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विफाक की अदम संजीदगी कि सिंध अपनी जिम्मेदारियों से होता। मैं ज़ाती तौर पर आपको जानता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर ऐसे वाक़यात जानता हूँ, ऐसा वाक़या भी जानता हूँ कि जहाँ पर एक घर में बाप का इंतकाल हुआ, SOPs के तहत मुमकिन था कि बेटे को जनाजे में जाने दे दिया जाता, लेकिन नीचे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने नहीं सुनी, बेटे को बाप के जनाजे में नहीं जाने दिया। उसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया, 14 दिन बाद भी किसी ने टेस्ट नहीं लिया, वो घर में पड़े पड़े रोते रहे, बिलखते रहे कि अब तो हमारे 14 दिन भी हो गए, हमारा नया टेस्ट करवा दो। उनको 20 दिनों तक घर से नहीं निकलने दिया किसी ने, पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनको घर से निकलवाना पड़ा। अभी तो ये मामला शुरू हुआ और ये हालात हैं, ये एक्सपोज कर दिया ना आपके हेल्थ सिस्टम को फिर इस सारे वाकयात ने। तो फिर देखिए, ये जो वाकया है इससे हेल्थ सिस्टम की बात नहीं है। हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी वसाइल के होते हुए सिंध हुकूमत अपना परफॉर्म कर रही है, जितनी स्क्रीनिंग, जितने टेस्ट हम कर रहे हैं, वो अगर आप देखा जाए तो अमवात की शरह सिंध में KPK से बहुत कम है और इन्फेक्शन जो है वो सिंध में अगर ज़्यादा है, लेकिन अमवात की शरह फिर भी सिंध में KPK से बहुत कम है, 2.5% से 2% के दरमियान है और KPK में 5.5% है। तो मैं समझ रही हूँ कि सेहत के अगर आप शोबे को देखें तो मेरा ख्याल है कि फिर भी निस्बतन हम शायद कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसमें बेहतर की गुंजाइश
गुजारिश है, हमें और मेहनत करनी मैं है। सदाकत साहब से पूछता हूँ, मैं और मुझे अफसोस है इस बात का जो आप अभी बता रहे हैं, जो आपने एक कभी बयान की है कहानी, मुझे यकीन है आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त बात कह रहे हैं। मेरे ज़ाती नॉलेज में, मैं ज़ाती पर राब्ते में उस फैमिली से, मुझे ज़ाती नॉलेज है। इट्स वेरी सैड, और उसमें अगर पुलिस ने नहीं छोड़ा उनको तो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं है। आई थिंक पुलिस को भी SOPs के ऊपर फॉलो करते हुए फैमिली के जो करीबी रिलेटिव्स हैं उनको बिल्कुल इजाजत है कि वो जाके, मतलब हर चीज इंटर रिलेटेड है ना। मैं हेल्थ का इसलिए कह रहा हूँ कि वो टेस्ट नहीं हो रहा था तो पुलिस कह रही थी टेस्ट कराओ, तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर रिपोर्ट नहीं आई तो पुलिस कह रही थी रिपोर्ट दिखाओ, तो हर चीज इंटर कनेक्टेड है ना। उस एतबार से हेल्थ का कह रहा था। बट सदाकत भाई साहब, अगर ये इस तरह की मजीद खबरें आना शुरू हुई और TV स्क्रीन पर हमने यही मनाजिर देखे कि जनाब एक प्रेस यानी एक बंदा यहाँ से सिंध को उड़ा रहा हो और सिंध वफाक को उड़ा रहा हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से सिंध के खिलाफ हो रही हो, वफाक से हो रही हो, तो फिर लोग बहुत बदजन हो जाएंगे सियासतदानों से भी और सियासत से भी। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, जो आपने वाक़या सुनाया और मैंने काशिफ साहब के प्रोग्राम का शुरू में देखा, वो वाक़या बहुत ही दिलखराश है। खाली किसी एक इंसान की जान नहीं है बल्कि उस मसीहा की जान है जिसने हमारी जानें बचानी है। और दूसरी बात ये कि 12 साल की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जिसमें से 2 साल तो चलो 18वीं तरमीम के बगैर थे, आखिरी 10 साल 18वीं तरमीम में जिनमें इनके पास सारे इख्तियारात सेहत के सूबाई हुकूमत के पास थे। और मैं नाज साहिबा बड़ा अच्छा बोलती हैं, अमूमन बड़ी अच्छी बात करती हैं, लेकिन अभी जिस तरह वो डाइवर्ट कर रही थी इस सवाल को, कभी से लाहौर में और कभी पेशावर में जाके इसकी मिसालें देना बड़ा अफसोसनाक है इनकी तरफ से भी। असल में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत की पॉपुलैरिटी जा रही है और उसके ये रिएक्शन में, ये शुरू से जब से ये कोरोना आया, ये एक पब्लिसिटी स्टंट इनका लग रहा है। हर चीज़ में दिखलावे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, काम की बजाय ये इस तरफ इन्होंने जोर रखा। और आज अफसोस के साथ सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा एवरेज उसमें वो इन्फेक्टेड भी है और हालात भी आपके सामने। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ये जब 18वीं तरमीम को डिफेंस में जाते हैं तो सारी सियासत करते हैं। आज इनसे पूछा जाए कि आपने 12 साल में सिंध को तो खैर आपने डुबो ही दिया, खाली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है वहाँ सेहत में क्या इम्प्रूवमेंट की, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब रही बात कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है 18वीं तरमीम की, जो ये ख़ासकर हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, इन चीज़ों में जो ये एक बहुत बड़ा इनसे फ्लॉ हुआ हमारी कौम से और हमारे लोगों से, उसको ठीक करके ये जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की होनी चाहिए कि इस तरह का कोई पैंडेमिक आए जिसकी हदूद किसी सूबे किसी आप कह रहे हैं 18वीं तरमीम में जिस अंदाज से सेहत और तालीम के मामलात सूबे को तकवीज़ कर दिए गए वो एक गलती थी, एक फाश गलती थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सूबाई खुद मुख्तारी के हम बहुत बड़े दाई हैं और इख्तियारात की नीचे मुंतकली, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का हम समझते हैं वो उसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट था। लेकिन जिस तरह सूबों ने अपनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की हेल्थ और एजुकेशन में, और हेल्थ में तो ये आपको एक्सपोज हो गया, एजुकेशन में वसीम मेरा सारी ज़िंदगी गुजरी है। मैं समझता हूँ कि सूबों को तालीम का इस तरह डिवॉल्व कर देना कि वो सिलेबस भी खुद बनाए, इस कौम के साथ बहुत बड़ी एक ज्यादती हुई है। और खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में हम पाकिस्तानी कम और पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान ज़्यादा हो जाएंगे। जो जिसने भी ये जुल्म किया इसको अनडू करना है एजुकेशन का। और हेल्थ भी आपके सामने सूबाई हुकूमतें एक्सपोज हो गई हैं। एक तरफ बिलावल साहब सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की बात करते हैं और दूसरी तरफ पैसे मांगते हैं। पैसे वो जो पूरे मुल्क के पैसे 62% सूबों के पास चल जाता है और कैपेसिटी नहीं, और आज वो